And this is where the Holy Spirit has to help us to convince us that our beloved ones are in a better place. और यही समय है जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है और ये बात सिखाता है कि हमारा प्रियजन एक बेहतर स्थान में गया है. This is a reality. We are in a phase where nations are being affected under fear. ये हकीकत है. हम एक ऐसे समय पर जी रहे हैं जब देश दुनिया भर में लोग बड़ा एक भय छाया हुआ है. COVID is creating terror. ये कोविड के द्वारा एक बहुत खौफनाक भय घुस जा रहा है. But among that fear, we are the Pauls who stand up in that boat and say, "Fear not, God has talked to me." और ये घबराहट के बीच में भी हम वैसे पौलुस के समान हैं जो आंधी तूफान के समय पर भी बोट में खड़े होकर कहा, मत डरो, परमेश्वर हमारे साथ में है. But then there will be a question, if God is with us, why is this happening? तो ये प्रश्न जरूर आ सकता है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? And this is where the word that we are not to be entangled in anything of this world as a true soldier of Jesus Christ. इसलिए ये वचन समझना जरूरी है कि एक सच्चे मसीह के सिपाही होने के नाते हम लोग दुनिया और संसार में इतने फंस ना जाए. 2 Timothy chapter 2 and verse 3. दूसरा Therefore endure the hardship as a good soldier of Jesus Christ. दूसरा तिमोथी उसका तीसरा चैप्टर 2 कलम कहता है. 3 कलम पढ़ेंगे. यस. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. पौलुस बताना है कि एक सच्चे मसीह के सिपाही होने के नाते तो हम लोग सब सताव तकलीफ को सहने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार रहे. No one engaged in a warfare entangles himself with the affair of this life, that he may please him who has enlisted him as a soldier. चौथा कलम कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले के प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता. There is some translation mistake. थोड़ा सा अनुवाद में गलत दिख रहा है. Many, even in Malayalam Bible translation, there is a mistake. मलयालम भाषा में भी कुछ बाइबल ट्रांसलेशन में कुछ फर्क है. It says that as a soldier does not deal with anything in the world. We have to deal with many things, but we won't get entangled. मीने में फंसेंगे नहीं किसी में. That's right. ना इसका ये मतलब हो रहा है कि संसार में हम जरूर बहुत काम में रहते पर किसी में फंसेंगे नहीं. Nothing can stop us from our mission because we have a clear understanding that we came alone, we are here alone, and we are going back alone. और जो कार्य करने परमेश्वर ने बुलाया है उसके लिए हमको बिल्कुल स्पष्ट हमारा सोच और विचार होना है कि हम अकेले आए, अब यहां पर अकेले हैं और अकेले चले जाएंगे. I will in 2005 I will tell you about an incident. 2005 की घटना बताता हूं आपको. I was going to Taiwan for the first time. मैं पहली बार ताइवान जा रहा था. Taiwan is a new country. I don't know, and so they have invited me for 2 major crusades. और ताइवान एक नया देश था मेरे लिए और मैं नहीं जानता था और वहां पर उन्होंने मुझको 2 भारी क्रूसेड के लिए बुलाया था. I arrived in Taiwan. मैं ताइवान पहुंचा. Now I'll tell you a small background so that you know what the situation is. I lost my father when I was 13 years. जब मैं 13 साल का था मैंने अपने पिता को खो दिया था. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सकेंगे. So my mother took care of me. We went through a lot of hardship during childhood. तो मेरे बाप जाने के lot बाद of struggles in my life. बड़ा किया और हमको बहुत तकलीफ हुई थी. So during the hardship and because there is no shelter for me, और उस समय me and my mother were bigger
than friends. और उस समय इतना परिश्रम था हमारे जीवन में, तो ऐसा हुआ कि दोस्तों से बढ़कर मैं और मेरी मां का रिश्ता बहुत बड़ा था। There was nothing which I would not share with my mother. There was nothing that my mother would not share. We were more than friends. ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि मैं अपनी मां को नहीं बताता था और मेरी मां मुझको नहीं बताती थी। हम तो दोस्तों से बढ़कर हम दोनों का संबंध था, रिश्ता था। Even after marriage, things which I would not tell my wife, I will tell my mother. शादी के बाद में भी कुछ बातें कुछ ऐसी थी जो मैं अपनी पत्नी को नहीं बताया पर मां को बताता था। That is how attached I was with my mother. ये बताने को है कि मेरा इतना गहरा संबंध था मेरी मां के साथ में। So when I was going to Taiwan, she prayed for me तो जब मैं ताइवान जा रहा था, मेरी मां ने मेरे लिए प्रार्थना किया था and said, "Go and shake the place." और बोला जा उस स्थान को तो उल्टा पुल्टा करके रख दे, And when you come back, bring me some cups, Chinese cups. और जब तू ताइवान से वापस आएगा तो छोटे चाइनीज कप्स होते हैं वो जरूर लेकर के आना। And so I went. तो मैं गया। I arrived at the Taiwan airport. तो मैं ताइवान एयरपोर्ट पहुंच गया। The big ceremony to even the mayor of Taiwan there inviting me. और बहुत बड़ा उत्सव हुआ, मेरे को स्वागत का उत्सव था और ताइवान का मेयर भी वहां पर आ गया था मुझको। And so they were singing song and I am entering. और वो लोग गीत एयरपोर्ट ये एयरपोर्ट का सीन बता रहा हूँ, गीत गाते गाते मैं वहां प्रवेश किया। The main person who is conducting, he said, "Pastor, I have a good news to tell you and I have a bad news to tell." जो खास व्यक्ति जो पूरा सेरेमनी कंडक्ट कर रहा था उसने मुझको बोला, पास्टर आपके लिए गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। I said, "Say, no problem." ठीक है, बताइए क्या बात है, बता। नो प्रॉब्लम। Good news is crusades are all ready. We are so excited. People are excited. And we are ready. First time an Indian is being accepted into the Chinese community in such a large way. और गुड न्यूज ये है कि पूरा क्रूसेड्स की तैयारी हो चुकी है, हम लोग पूरा तैयार, क्योंकि पहली बार एक इंडियन व्यक्ति यहाँ पर ताइवानीज लोगों के बीच में आकर प्रचार करने वाला है। We have meetings in auditorium, but first time in stadium we are doing, and people are already booking their seats. और इससे पहले ताइवान में मीटिंग्स तो ऑडिटोरियम में होती थी, पर यह पहली बार है कि स्टेडियम में हो रहा है और लोग अपनी सीट्स को पहले से बुक कर रहे हैं। Very, very exciting. हम लोग बहुत उत्साहित थे। I said, "Very good, thank you very much." और अब मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। So what's the bad news? तो बोला बैड न्यूज बताइए। Your mother passed away. तेरी माँ प्रभु में सो गई। He said, "Hey, a lie." तो बोले कि She नहीं, ऐसा prayed नहीं हो for सकता। me. नहीं, उसने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। She blessed me and sent me. Might be some miscommunication. उसने तो मेरे लिए प्रार्थना करी, आशीर्वाद के साथ मुझको यहाँ भेजी। मैं सोचता हूँ कुछ आपने गलत सुना होगा। Then the phone came. फिर फोन आया। So the pastor said, "This is your associate pastor calling from your home." तो फिर पास्टर ने बोला आपका साथीदार पास्टर वहां से कॉल कर रहा है। So I took the phone. मैंने फोन लिया। I said, "What happened?" बोला क्या हुआ? Just after you left, after your plane took off, she had a cardiac arrest and she passed away. आपका जब विमान दुबई से निकल रहा है तो उसी समय उनको एक हार्ट अटैक हुआ और वो प्रभु में सो गई। I was still. मैं तो सुन करके बिल्कुल शांत हो गया। I said, "No, how can this be?" मैं बोला नहीं, ये कैसे हो गया? The pastor came to me. वो पास्टर मेरे पास में आया। You can go back to India. तो वापस इंडिया चले जा, Or you can preach the gospel. या आप फिर भी प्रचार काम जारी रखेंगे। Choice is yours. ये चुनाव आपको करना है। Because we can see how attached you are with your mother, and they told that you won't be able to take this shock. क्योंकि हम जानते हैं आप अपने माँ के बहुत करीब है और हम ये भी जानते हैं ये दुखद घटना सुन करके आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। Suddenly the Holy Spirit told me, एकाएक पवित्र आत्मा ने मुझको ये बोला, how can you take a decision? Talk to your commander. और पवित्र आत्मा ने बोला ये निर्णय तू कैसे लेने वाला है?
Talk to your commander. तेरे कमांडर से, अधिकारी से तू बातचीत कर। I told the pastor, give me 2 minutes. मैंने पास्टर को बोला 2 मिनट मुझको दीजिए। I started walking. मैं वहीं पर बाजू चला गया। I said, what do you want me to do? मैंने जाके पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? Jesus, what do you want me to do? मैंने प्रार्थना में कहा, यीशु मसीह तू क्या चाहता है, ये क्षण में क्या करूं? Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, and I can tell you, I heard him say, और मैं साफ बता रहा हूं, मैंने यीशु की आवाज सुनी। a soldier has no emotion in the battle. एक जो सिपाही होता है जब युद्ध में जाता है तो कोई भावना पर कदर नहीं करेगा। Go and preach. जा और प्रचार कर। No tear in your eyes. सॉरी, No tear in your eyes. तेरे आंखों में कोई आंसू मत रखना। Show them that eternal is real. उनको ये जाके बता कि अनंत जीवन ये वास्तविक बात है। The body of your mother is in India, but she is with me. तेरी माँ की शव और देह तो इंडिया में है, परंतु तेरी माँ तो मेरे पास में है। This is what you are preaching. यही तो तू प्रचार कर रहा है। Go. जा। I turned back. मैं वापस लौटा। I said, come, let us go to the crusade. और मैंने बोला, आओ आओ आओ, चलो हम क्रूसेड में जाने वाले हैं। Everyone looked at me as if I was mentally ill. सब लोग ये देख रहे हैं, सोच रहे कि मैं तो आउट हो गया दिमाग से। I said, come, I'm not joking. Come on, let us go to the crusade. Let me tell me what more to do. Let us go. और मैंने कहा, मैं कोई जोक चुटकुला नहीं बोल रहा हूं, चलो 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 क्रूसेड के लिए जाएंगे हम लोग। We went to the hotel. हम लोग वापस होटल में गए। I closed the room. मैंने कमरा बंद किया and wept. और रोता रहा। I said, Jesus, how I could not even see her body. मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह, मैं तो उसके शव को भी देख नहीं पाया। How can you do this with me? तूने ऐसा मेरे साथ में क्यों करा? I love you so much. How can you do with me? मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Jesus said, she is in a better place than you now. यीशु मसीह ने कहा, जिस स्थान पर तू है उससे बेहतर स्थान पर तेरी मां मेरे साथ में है। Do you believe what I say? विश्वास कर जो मैं बोल रहा हूं तुझसे। I cried. I was very sorrowful, and I'll tell you, even today I miss her. मैं बहुत रोया, बहुत दुखी था, और मैं आज भी कहता हूं, आज भी मेरी मां को मैं बहुत याद करता हूं। The time for the crusade came. और फिर समय आया कि वो क्रूसेड चालू करना है। I went to the stage. मैं स्टेज पर खड़ा हो गया। Inside weeping, but on my face smile. अंदर से तो मैं रो रहा हूं, पर चेहरे पर मुस्कुराहट छाया हुआ है। Pastors are asking again and again, why are you laughing? पास्टर मुझसे बार बार पूछ रहे, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? I danced on the stage. मैं तो स्टेज पर डांस भी कर रहा हूं। I said, my mother has gone to be with Jesus. Come on, dance and rejoice. मैंने बोला, मेरी माँ यीशु के पास गई है, आओ हम नाचेंगे और आनंद करेंगे। They were confused what is happening. उन लोगों को समझना नहीं था, बड़े गुमराह हो गए कि ये क्या हो रहा है। Back into the room, again I will be weeping. In the stage, I will be bold as a lion. जब कमरे में अपने होटल में जाता था, मैं फिर से बहुत रोता था, पर जब स्टेज पर आता था, मैं एक सिंह के समान बहुत बहादुर था। Thus started the revival in Taiwan. और उसके बाद ताइवान में एक बड़ी भारी बेदारी शुरू हो गई। The pastors who would never talk against with each other, they repented. वो पासबान लोग जो एक दूसरों का चेहरा नहीं देख सकते थे, अब मन फिराए और एकता आ गई। They started to say, wow, the word is true. वो बोलना शुरू कर दिया। It was an alarm that we are preaching eternal life and we are afraid of death. वो उन्होंने कहा, ये तो अलार्म बज गई, घंटी बज गई, हम तो प्रचार कर रहे हैं अनंत जीवन के बारे में और हम मौत से घबराते हैं। We are becoming emotional
than becoming a soldier of Jesus Christ. हम लोग तो कई बार भावना से इतने उमड़ गए हैं, हमको तो एक योद्धा बनना था मसीह के लिए। I will tell you, when in the first century, in the history says that when Christians were pushed into the arena to be killed, मैं बता रहा हूं कि बाइबल का इतिहास बताता, दुनिया के इतिहास बताता है कि पहले शताब्दी में मसीह लोगों को एक स्टेडियम में भेजा जाता था, वहां पर उनको कत्ल कर दिया जाता था। it was not ordinary. They were pierced and they were burnt. वो साधारण रीति से नहीं मारते थे, उनको तड़पा तड़पा करके, भाले चुबाकर, जला जला करके मार डालते थे। And there was a competition among believers. I want to die first. और ये स्पर्धा होता था उनके बीच में कि नहीं, मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा। The joy on their face was so big that even Roman soldiers jumped into the pit and declared Jesus is Lord, seeing their joy. परंतु वो विश्वासी लोग जो शहीद हो रहे थे, आनंद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इतना आनंद था कि जो रोमन सिपाही लोग ने जो देख रहे थे, वो भी उतर गए वहां पर और यीशु मसीह को ग्रहण किया और आनंद करने लगे। I'll tell you something very clearly today. मैं आज स्पष्ट रीति से आपसे कुछ बताना चाहता हूं। COVID is a reality. कोविड ये एक हकीकत, वास्तविकता है। And now we know that even if we don't see, we are fearing. देखो, मैं ये भी बोल रहा हूं कि जब आपको दिखता भी नहीं होगा, फिर भी डर है ना। But I'll tell you, there is a greater reality. Jesus Christ, who is alive, who is real, and that is what we preach. आमेन। परंतु एक कहता है और एक बड़ी वास्तविकता है, यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर, जिसका प्रचार करते हैं हम लोग। We are not believing in a story. This is a reality. I want all of you who are watching me, stop crying and march forward in Jesus' name. मैं जो प्रचार कर रहा हूं, ये कोई चुटकुला और कहानी नहीं बता रहा हूं, ये हकीकत है। मैं बोल रहा हूं, अब रोना बंद कर और विश्वास से आगे तू बढ़ते जा। I will say, stop praying, march forward. मैं कह रहा हूं कि अब प्रार्थना बंद कर दे और तू आगे बढ़ना चालू कर दे। Whom are you praying to? आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? COVID is not given by God. ये कोविड परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। Jesus said, Satan, he comes to destroy, he comes to kill. It is the devil, and we resist the devil by faith, by the strength of the Holy Spirit. अब यीशु मसीह खुद ने कहा है कि शैतान चोर इसलिए आता है, चोरी करने, घात करने, नाश करने, और इस शैतान का सामना करना है तो आपको विश्वास के साथ में आगे बढ़ते जाना है। Whom are we praying to? What are we doing? आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? We know who Jesus is. हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है। What is eternal life? Eternal life was given by Jesus so that we can have fellowship with him. हम जानते हैं अनंत जीवन ये मसीह यीशु ने दिया और इसलिए दिया कि हम उसके साथ संगति कर सके। The fear of COVID is bigger than COVID. जो कोविड का भय है वो कोविड से भी बड़ा है, कहना चाहता हूं। No, we are not going to subject to this, and I want to tell you very clearly, this is nothing. We will overcome it in Jesus' name. We will take over the nation in the name of Jesus. Yes, मैं कहना चाहता हूं ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मत डरो, मत घबराओ। हम लोग इस पर विजय होने वाले हैं, हम लोग पराक्रमी होंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। The 72 hours you are praying, pray, Father, give us strategy, give us wisdom, give us the right knowledge, how we are going to go ahead with the gospel of Jesus Christ. ये 72 घंटे की प्रार्थना हम लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमको कुछ राजनीतिक कुछ स्ट्रेटेजी दे प्रभु जी, कुछ सिद्धांत सिखा प्रभु जी, हमको बता कैसे हमको आगे सुसमाचार प्रचार को आगे बढ़ाना है। If we know the right perspective of Jesus Christ, we will become fearless. We will become bold. We will not look behind. We will look beyond. अगर आप यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानते हैं तो आप नहीं डरेंगे, आप जयवंत होंगे, बलवान होंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। Oh, I'll tell you, I too had COVID.
मैं बताना चाहता हूं, मेरे को भी कोविड हुआ था. I also got COVID. January, I had COVID. I went to the situation, but COVID did not enter my mind. I knew one thing, that the Holy Spirit in me is a consuming fire, which will consume Hallelujah. infection, which will consume everything. Yes, I Lord. will come out with the Hallelujah. glory of God. Hallelujah. There was Hallelujah. pain in my body. I could not take breath, but I said, no, Hallelujah. I will not give Yes, into Lord. this. Amen. Yes, Lord. मुझे जनवरी में कोविड हो गया था, मेरे शरीर में कोविड हो गया था, मुझको सांस लेने की तकलीफ थी, मेरे शरीर में बहुत दर्द था, परंतु मेरे मन में यीशु था. मैंने बोला ये मेरे अंदर में नुकसान नहीं कर पाएगा, मैं तो आगे आगे बढ़ते जाऊंगा. The one in me is greater. मैंने कहा कि जो मुझ में है वो बढ़कर है. The one in me is fire. मैंने कहा मेरे अंदर जो है वो अग्नि है. I will go forward. मैं तो आगे ही बढ़ता जाऊंगा. And if I don't, I will believe I have finished my mission on earth. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो विश्वास करूंगा मैंने कार्य पृथ्वी पर पूरा कर दिया है. Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा प्रभु है. And if not a hair of my head will fall without his knowledge. मेरा सिर का एक बाल भी बिना उसके ज्ञान के नहीं गिर सकता है. I took all the precaution. मैंने जरूर पूरी सावधानी बनाया. I wore the mask, I was sanitizing, but I was traveling a lot. मैं मास्क भी पहना, सैनिटाइज भी किया, परंतु मैं बहुत सफर कर रहा था. But everything I did, but I had this. मैं सब कुछ किया पर फिर भी मेरे को कोविड हो गया. I know today that my protector is Jesus Christ. मैं आज निश्चय जानता हूं कि मेरा सुरक्षा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. I am a soldier of Jesus Christ. मैं तो यीशु मसीह का सिपाही हूं. I love him and I will fight the battle which is I'm ahead. Devil is not my enemy. Devil is no match for me. मैं तो ये युद्ध में आगे ही आगे बढ़ता ही जाऊंगा. यीशु मसीह पर विश्वास करके शैतान मेरा कुछ सामना नहीं कर पाएगा. शैतान Devil कुछ is भी no नहीं match for us. Devil is no match for us because we are greater. शैतान तो ये हमारे आगे कुछ भी छोटा सा ये दुश्मन है. हमको घबराने की जरूरत नहीं. हम तो अंदर में जो है वो बढ़कर है. Mind should not have COVID. We should see it just as a cold which is coming. Fight it in Jesus name. आपके दिमाग में कोविड ना घुसने पाए. शरीर में हो सकता है जैसे साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है. आपको यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी का सामना करना है. I will tell you. मैं कहता हूं, if you don't know to swim, अगर आप तैरना नहीं जानते and you walk into the water, even if the water is till your knee, you will start suffocating. अगर आप तैरना नहीं जानते और आप एक तालाब में जाते, हालांकि पानी घुटनों तक है, परंतु घबराहट इतना घुस जाएगा कि आपको लगा कि आप डूब रहे हैं. You will feel suffocated. श्वास लेना difficult हो जाता है. आपका श्वास लेना बहुत कठिन हो जाएगा. आप ऐसा महसूस करते जाएंगे. Because you don't know to swim. क्योंकि आप तैरना नहीं जानते. इसलिए The fear of COVID is greater than COVID itself. इसलिए सुन लीजिए ध्यान से कि कोविड का भय वो कोविड से भी बढ़कर है. We are resisting that fear. हम लोग वो भय का सामना करना है. We will resist the fear. We will take all the precaution, but we will know that the protector is Jesus. We are on a mission. We love him. We will go forward. हम लोग सावधानी जरूर बनाएंगे, परंतु इस बात को जान लेंगे कि मेरा सुरक्षा देने वाला प्रभु जीवित है. हमारे पास एक कार्य है और इस कार्य में हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे. Number one. पहली बात. Number two. दूसरी बात, we should not compare the devil with Jesus. दूसरी बात यह है कि हम शैतान को यीशु मसीह के साथ में तुलना ना करने पाए. Jesus is Jesus. यीशु And मसीह there is no one we can compare him with. और यीशु मसीह इतना महान है, हम उसकी तुलना किसी के साथ में नहीं कर सकते. There is no other name that can come even near. His name is far above. Only one.
God, only one Savior, only one. Don't compare Him, and He is in us. आमेन। ना वो नाम, यीशु का नाम इतना ऊंचा नाम है, हम कोई और नाम के साथ तुलना भी नहीं कर सकते। आप भूल करके भी आप समानता तुलना ना करने पाइए। यीशु का नाम तो बहुत ऊंचा नाम है, और वो यीशु मसीह आज हमारे अंदर में है। This is the time where we should have an closer fellowship with the Holy Spirit. Holy Spirit here today is a helper for us. Holy Spirit is an advantage for us. Holy Spirit is real. He is God and He is living in us. ये समय है कि आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो जीवित है, और उसी के सामर्थ्य के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। Do not be afraid at all. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। I am assuring you in Christ, what we preach, we should believe. मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं कि जो हम प्रचार करते हैं उस पर विश्वास भी करें। We know Jesus is real, more real than this seen world. हम जानते हैं यीशु मसीह वास्तविक है, जो दिखती हुई दुनिया उससे भी ज्यादा वास्तविक मेरा यीशु मसीह है। There are challenges. जरूर चुनौती आती है। There might be financial trouble because we cannot assemble. कई बार आर्थिक परेशानी आ जाती है, हम जो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। There are many other challenges. बहुत सारी और भी चुनौती आती है आपके साथ में, परंतु no fear should come inside of us. परंतु डर को हमारे अंदर में घुसने ना देना। He who has called us is faithful. जिसने हमको बुलाया है वो वफादार परमेश्वर है। I am in India. Our churches are in India. We are in India. हम लोग इंडिया में हैं, हमारे चर्च सब इंडिया में I am हैं। in India. मैं इंडिया में हूं। For the past 1 year, we have thousands of ministers, but none of them lacked anything. हमारे पास कई हजार पासबान हमारे सेवकाई में है, परंतु कहना चाहता हूं एक को भी कमी घटी नहीं हुई। There was no shortage. Why? Because we believe that He who fed the 2.5 million in the desert is our Lord. हमारे बीच में कोई भी, खासकर ये पिछले साल भर में कोई भी कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि हमने विश्वास किया जो 25 लाख से ज्यादा जो मिस्र में 40 साल तक इजराइल अब्राहम के संतान थी, परमेश्वर ने एक एक आवश्यकता उनकी पूरी की। वही परमेश्वर आज हमारे साथ में भी है। I want to tell you, this is the time we should understand whom we believe. मैं कहना चाहता हूं ये समय वो आ गया कि हम समझ जाए कि हम किस पर विश्वास करते हैं। If we believe that Jesus is alive, if we believed He died on the cross and is risen, if we believe He is alive today seated at the right hand of the Father, what we believe is more important than anything else. अगर हम विश्वास करते यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, अगर हम विश्वास करते यीशु मसीह जीवित है, अगर हम विश्वास करते आज यीशु मसीह आज हमारे साथ में है, तो हमको विश्वास के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। Jesus did not die on the cross. Jesus did not come into this world just for the forgiveness of sin. यीशु मसीह जब इस जगत में आया, क्रूस पर मारा गया है, केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं मारा गया। The Bible, Jesus said, for God so loved the world, He sent His Son. Does not say for the forgiveness of sin. It says that they may not perish but have eternal life. Meaning God's life in us so that we can have fellowship with Him. यस, बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है अपना इकलौता पुत्र बेटा, इसलिए नहीं कि सिर्फ पापों की क्षमा तुमको देने के लिए, इसलिए भेजा है कि तुम विश्वास करे तो तुम्हारा जीवन नाश नहीं होगा और तुमको वो जोए लाइफ, परमेश्वर वाला जीवन तुमको मिल जाएगा। Meaning to say, Jesus died on the cross. Forgiveness of sin was a part, not for you to reach heaven, to have fellowship with Him on this earth. यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, केवल इतना ही नहीं कि आपको पापों की क्षमा मिला, वो तो एक भाग था उसका क्रूस पर मारे जाने का, पर इसलिए भी था कि यीशु मसीह आपके साथ इस जगत में संगति करे। And when we have fellowship with Him, with the help of the Holy Spirit, there is no fear. और जब हम उसके साथ संगति करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, कोई भय हमारे अंदर नहीं है। Lift up your head.
आए अपने सिर को उठाए, Lift up your head. अपने सिरों को उठाओ। I am very sad of many things which are happening, but Jarur. my head will not go into it. My head will be lifted. From where comes my help? My help comes from the Creator, not from man. हालेलुया। ना जरूर चारों ओर देखकर बहुत दुखित होता हूं, परंतु मेरा मुख, मेरा चेहरा, मैं तो उस सृजनहारे के तरफ में उठाता हूं जहां से मेरी सहायता आती है। Oh, no, no, I won't look back. I will not look back. I will not allow fear to come in me. I know devil is under my feet. God is not the author of COVID. Devil is, and I will resist him. Amen. The thought of him in Jesus' name. Yes, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं हार नहीं मारूंगा। ये कोविड बीमारी परमेश्वर से नहीं है, शैतान से आई है, और मैं तो इसका यीशु के नाम से इसका सामना करते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। Whatever it is, I will stand erect. सीना तान के खड़े होंगे, सर उठा के खड़े होंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर पैसा नहीं है, मेरा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, मेरा परमेश्वर जीता हुआ यीशु है। हालेलुया, And he is the Lion of the tribe of Judah. The one in me is greater. The one in me is fire. I came alone. I go back alone. There is no power that can stop me. आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहूदा के गोत्र का सिंह है, और जो मुझ में है वो बढ़ करके है। कोई अंधकार की शक्ति मुझको रोकेगी नहीं, मैं तो आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। The one in me is greater. जो मुझ में है वो बढ़कर है। Meaning to say, I am here for greater works, not to cry, not to look back. I will break the chain and go forward in Jesus' name. इसका यह मतलब है कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं वो जंजीरों को तोड़ करके मैं आगे ही बढ़ते जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। Just now, before I'm talking to you, I was talking with my key leaders and developing a strategy how we will take over the nation. और यहाँ पर मीटिंग में आज आने से पहले मैं अपने की लीडर्स के साथ बातचीत कर रहा था, और कुछ रणनीति हम लोग विचार कर रहे थे कि किस रीति से हम लोग आगे इस काम को बढ़ाने वाले हैं और इस देश में पराक्रमी होंगे। We were not discussing how to run away. We were discussing how we will face and subdue and lift the name of Jesus. हम लोग ये नहीं विचार कर रहे थे कि अब कैसे भाग जाएंगे यहां से, परंतु हम लोग ये विचार कर रहे हैं कैसे हम पराक्रमी होंगे और हम यीशु का कार्य को आगे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। The foundation is, do you know Jesus? नींव ये है, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? Yes. There are challenges. I told you, even today I miss my mother. I will miss her till my death. जी, But there is a mission ahead for me. जी, हमारे आगे चुनौती बहुत है। मैंने आपको बताया मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ, आज भी याद करता हूँ, परंतु हमारे आगे में कार्य है ना, उस कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। I miss Devashish. I'll tell you for the truth, I wept that day. Yes. I did not come to the Zoom because I did not want to show my face. मैं अपने And I will miss him till my death. Yes. But I will not sit there. I will go ahead with my mission. आमीन। मैं अपने मित्र पास्टर देवाशीष को याद करता हूं, बहुत दुखी था उस समय, मैं जूम पर भी नहीं आ सका, चेहरा भी नहीं दिखा, इतना दुख से था। मैं उसको बहुत मिस करता हूं, परंतु जो कार्य मेरे को प्रभु ने दिया वो कार्य को मैं आगे आगे करता जाऊंगा। It was so joy that Pastor Girish oxygen level is coming up. These are all men and women who are close to our heart. Why? Because we are co-workers in Christ, fellow soldiers in Christ. Yet we have a common enemy, the devil. जी, पास्टर गिरीश की भी खबर मेरे को सुनी है कि अभी वो ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ते जा रहा है। ये सब मसीह के संगी वारिस है, ये हमारे भाई लोग हैं जो सेवकाई में लगे। हम तो प्रार्थना करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। You are in Nagpur, you are in there, I am in Kerala. We are all different places, but we become a one battalion in Jesus. आप नागपुर में होंगे, मैं केरला में हूं, आप लोग जगह जगह से ज्वाइन किए हैं, परंतु हम लोग सब एक मसीह की सेना है। Body of Jesus Christ. हम लोग मसीह यीशु की देह है। The head is Jesus. सिर यीशु मसीह है। And he is responsible. वो सिर यीशु मसीह है और वो ही जिम्मेवार है। This 72 hours of prayer, don't cry.
ये 72 घंटे में आपको रोने की जरूरत नहीं है। Don't cry, have mercy on India. ये प्रार्थना मत करना, इंडिया पर दया कर, दया कर, दया कर। Don't pray, have mercy on the world. ये प्रार्थना मत करना, दया कर, पूरे संसार पर दया कर दे। God already has mercy on us and on the world. That is why he has given a way, and that is Jesus Christ. प्रभु ने पहले से ही दया कर दिया है पूरे संसार पर और हमारे ऊपर में, और इसीलिए तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। Let us pray that the eyes of the people will open and see this way. हम प्रार्थना ये करें कि लोगों की मन की आंखें खुल जाए और वो इस मार्ग को देखने पाए। We will pray that Father, let your glory fill the earth. हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी महिमा पूरे पृथ्वी में भर दे। Let us pray that the church will preach the right gospel. हम ये प्रार्थना करें प्रभु की कलीसिया सही सुसमाचार प्रचार करे। If the church preaches the right gospel, we will stop assembling in homes and auditoriums. We will assemble in stadiums. हालेलुया। अगर हम सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वैसी प्रार्थना भी आप करते हैं, तो अब हम लोग घर में जमा होना छोड़ देंगे। अब तो चर्च बिल्डिंग से बड़ा ऑडिटोरियम में चले जाएंगे और बड़े बड़े स्टेडियम्स में हम लोग मुलाकात करेंगे। People will run to you and say, please speak more about what you are saying. लोग हमारे पास दौड़े दौड़े आएंगे और कहेंगे हमें और सुनाओ जो बातें बता रहे आप। I want to say, pray for the right revelation of Christ in our life. मैं ये प्रार्थना आपसे निवेदन करूंगा कि आप सही प्रकाशन यीशु मसीह का होना चाहिए इन दिनों में, ये प्रार्थना करें। That we will know Jesus, whom we believe, who is our treasure. जिसको हम यीशु मसीह जिस पर विश्वास करते हैं, जो अनमोल धन है हमारे लिए, उसको हम लोग पहचाने और करीब से। Shake off your fear. इसलिए आज अपने भय को उतार दो। Lift up your head. अपने मुख चेहरे को ऊपर करो। And let's march forward. और आओ हम मसीह की सेना आगे आगे बढ़ते जाए। As I am talking to you, the Holy Spirit reminds me what he told Moses. जब मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे को इस समय याद दिला रहा है जो उसने मूसा को बोला था। God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, when Moses started to cry looking at the Red Sea, जब मूसा ने लाल समुद्र को देख करके वो घबरा गया और रोने लगा, God said, परमेश्वर ने बोला, stop crying, march forward. अब रोना बंद कर और आगे बढ़ जा। What have I given in your hand? जो मैंने तेरे हाथ में दिया हूं, Use it. उसको इस्तेमाल कर। Stop crying. अब रोना बंद कर। We don't have a stick. We have a name which is far above every name. आज हमारे पास लाठी नहीं है, परंतु एक नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है। Praise the Lord. Nothing can stop you and me. अब कोई बात आपको रोक नहीं सकती है। We will use the name, stop crying, march forward. अब हम उस नाम को इस्तेमाल करेंगे, रोना बंद कर देंगे, अब तो आगे बढ़ने वाले हैं। And we are the body of Christ. हम मसीह की देह है। We are not afraid of anything. हम किसी और बात से डरते नहीं हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I pray in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। I am praying for everyone who has joined. पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। It is a reality that people are getting sick. Some of our precious ones are now with you. ये हकीकत जरूर है कि बहुत सारे हमारे प्रिय लोग बहुत बीमार हैं। But we are not preaching reality, we are preaching the truth. परंतु हम हकीकत को प्रचार नहीं कर रहे, हम तो सत्य का प्रचार कर रहे हैं। And the truth is Jesus is alive and we are heading for eternity. और सत्य वो है यीशु मसीह जीवित है और एक दिन हम वो अनंत काल में जाने वाले हैं। We are knowing that we have authority in that name. हम जानते हैं कि हमारे पास उस नाम के द्वारा अधिकार है। You love us so much. आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। And your love will never cease. और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। You are not distracted by COVID. You are not distracted by anything in us.
you कोविड हो, love so much. कोविड हो या कोई और बात हमारे जीवन में हो, उससे तुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तू तो हमसे बहुत प्रेम करता है। We are your treasure. हम तो तेरे बहुमूल्य धन हैं And you love us so much. और आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। This 72 hours of prayer, let there be a revelation of the love of God towards us. ये 72 घंटे की प्रार्थना में होने दे प्रभु कि बहुत आयत का प्रकाशन होने पाए तेरे प्रेम के बारे में, That how much you love us, let everyone understand. ताकि हर एक जन समझ जाए कि तू हमसे कितना कितना प्रेम करता है। Because love conquers fear. क्योंकि वो प्रेम है जो भय पर जयवंत हो जाता है। Now I pray that you will send such a strong anointing upon everyone who is watching. अब मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज जुड़े हुए हैं सबके ऊपर एक भारी अभिषेक उतर आए, That they will shake the bondage of fear, shake the bondage that the devil is trying to put, and lift up their eyes कि unto इसी you. समय जो भी घबराहट और भय का बंधन है, शैतान ने जो बंधन डाला है, वो सब करके तोड़ करके और वो अपना चेहरा तेरे तरफ उठाने पाए। Father, we thank you for this fellowship that you organize now. पिता, हम धन्यवाद देते जो संगति अभी आपने जो हमारे लिए जमाया है यहाँ पर। Thank you for the provision that you have already prepared for us. धन्यवाद देते सब आयोजन जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। Oh, it is to lift your eyes up to you so that we can see what you have prepared for us, which ये eyes cannot see. इसलिए है कि हम नजर तेरे तरफ उठाए और देख सके जो आयोजन तूने बना चुका है, जो साधारण आंखों से नहीं दिखता है। For the world, they are in shock, but for us, we are sure where we are heading. क्यों ना संसार आज बहुत शौक और दुख में होगा, परंतु हम तो निश्चय जानते हैं हम कहां जा रहे हैं। We know where we came from, we know where we are going. हम जानते हैं हम कहां से आए और हम जानते ये भी है कि हम कहां जा रहे हैं। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। We give you all the glory. पूरी आदर महिमा तुझको देते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Great privilege. Thank you, Pastor, for translating. It was a big privilege for me, I would say, to translate for you. And I All believe of you. Thank you very much. And my heart is always with all of you. मैं सबको धन्यवाद देता हूं जितने लोग आज यहाँ सब जुड़े हैं और मेरा हृदय आपके साथ में जुड़ा हुआ है। I might be in the south, you are in central, but together we are the body of Christ. मैं दक्षिण में रहता हूं, आप सेंट्रल में रहते हैं, परंतु हम सब एक मसीह की देह है। Know that we are praying for you as you are praying for us also. इस बातों को निश्चय जाने कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जैसे आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We have one goal. हमारे पास एक ही लक्ष्य है, Preach Jesus Christ. यीशु मसीह का तू प्रचार कर। We have challenges, जरूर चुनौती है हमारे पास में, but there is peace in Christ Jesus. परंतु यीशु मसीह में शांति है। So God bless you. Thank you very much, Pastor Suresh. Thank you very much, Pastor John. All of you are such a blessing for us. Thank you so much. We were truly blessed this evening. God bless. All of you are a blessing to the body. सब लोग एक बहुत बड़ी आशीष है प्रभु की देखो। All of you are doing a mighty and great. आप धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आइए ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। एक बड़े भारी अभिषेक प्रभु के दास ने आकर के आज आपके लिए प्रार्थना किया है और यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको छुटकारा मिली है। वो भय और घबराहट का बंधन तोड़ा गया है ना। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ में है और इसीलिए ये प्रार्थना सभा यहाँ पर लगा दी गई है ताकि आप प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने पाए। मुझे शायद पता नहीं पास्टर सुरेश गॉड बोले शायद डिस्कनेक्ट हो गए, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ना, बट हम लोग क्लोजिंग प्रेयर की ओर में आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में पास्टर बिशप रायबोर्डे है। प्लीज आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे प्लीज क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए। यस ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit.
हे हमारे स्वर्गीय पिताजी, आपके बेटे यीशु के नाम से हम फिर से एक बार आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, जो कुछ जगत में हो रहा है, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है कि हमने क्या करना चाहिए। Yes, Lord. पिता परमेश्वर, उस विचारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो कि आगे जाने के लिए आज का जो जीवन है, ये जीवन नहीं लेकिन अनंतकालिक जीवन के बारे में सोचते रहने के लिए आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर है, उसके बारे में सोचते रहने वाले, लोगों को बताने वाले, खुद को बताने वाले हम लोग रहे। और कोई प्रश्न कितना भी कुछ ना रहे, लेकिन उत्तर यीशु मसीह है, उसने वो उत्तर हमें दिया है। और हम जब विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं, उस उत्तर को हम पाते हैं। पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना सुनने वाले, उत्तर देने वाले परमेश्वर है। कलीसिया जो है वो आपको जो मुख्य कारण है, कलीसिया, मेरी कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया करके का जानी जाएंगी, वो अभी इन दिनों में खास करके हो रहा है। इसके लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह 72 घंटे की प्रार्थना जो ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज करने वाले सभी को, खास करके जो की लीडर्स है, रेवरेंड जॉन जोसेफ, उनके लिए, और उसी के साथ में डॉक्टर विक्टर के लिए पिता परमेश्वर, उसी के साथ में भाई सुरेश गौड़ बोले, और सभी जन जो की लीडर्स है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, सहायता कर, मदद कर, और पिता परमेश्वर और लोगों को जुड़ने के लिए मन हो जाए, ऐसा तू कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते। पिछली प्रार्थना को सुन के अनेक लोगों को तूने जीवन दान दिया है, जीवन दान देने का कारण यह प्रार्थना हो गई है पिता परमेश्वर। हम सिर्फ ब्लेसिंग लेते नहीं हैं, लेकिन लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरते हैं। इसके लिए भी मैं तुझे धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मार्गदर्शन कर, और यह जो प्रार्थना है वो तू सुन रहा है। सभी बातें तेरे नियंत्रण में है, ऐसी एक भी बात नहीं कि आपके नियंत्रण में कुछ नहीं, हर एक बात आपके नियंत्रण में है। आपको जो योग्य लगता है आप करते हैं, आप जो कुछ करते हैं आप कभी भी गलत नहीं रहते। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ में ही प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अपने परिवार में से किसी और, एक को खोया है, दो को खोया है, किसी को खोया है, पिता परमेश्वर, यीशु जो शांति का राजकुमार है, उसकी शांति का अनुभव तू उन्हें होने दे। और जो सत्य है वो हमेशा ही सत्य रहता है, उसके तरफ ध्यान देने के लिए भी तू उनको सहायता और मदद कर, और आगे जाने के लिए उनको सहायता और मदद कर। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार धन्यवाद 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 आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो वचन जो सत्य है, जो जीवन है, उस वचन के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार यह प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। Thank you. Reverend Ronnie Jacob, benediction please. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. नहीं, माइक ऑन करना है। जीसस प्रभु। हाँ, yes. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ, और जितने भी लोग इस प्रार्थना में लगे, ये सारे जो यज्ञ है, उन सभी के साथ उसके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमेन 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 आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर जॉन एंड एंटायर कोर टीम। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत सुंदर रीति से आज के हमारी ओपनिंग हमने यहाँ पर किया है। और जितने भी फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव में हमें देख रहे हैं, आप सबसे मेरे यही विनती है कि कंटिन्यूस अब से आगे ये प्रार्थना शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी प्रेयर टीम जो है पास्टर लॉरेंस के साथ में ऑलरेडी तैयार है, जो कंटिन्यू अभी प्रार्थना करने जा रही है पूरे रात भर, कल दिन भर, पूरा शनिवार के रात के 9 बजे तक। और इसी तरह से रोज इवनिंग को हम 6 से 8 बजे तक हम लोग एक स्पेशल वक्ता के साथ में हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। और जो लोग अभी तक जिन्होंने अपने नाम नहीं दिए हैं लिस्ट में, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप किसी भी पास्टर के साथ में जुड़कर
आप प्रार्थना के दल में शामिल हुइए और जल्दी जल्दी आप अपने जो भी पेशेंट्स है जो कोविड से है उनके नाम आप इस ग्रुप पर या किसी भी लीडर्स के पास आप भेज दीजिए, ताकि हम जो लिस्ट जो लोग प्रार्थना हैं उन तक हम लोग पहुंचा सके। तो जो कल लोग के भी हमें प्रीचर का बता देना, कल के प्रीचर का बता देना।